Good morning all of you my dear students. Again Anil Kumar Singh, your computer teacher, here with a new topic, or can say the new points of the same topic which is discussed in the last video, and the last video which is related to the MS Access, or can say database. Okay, in the last video I have give you the introduction of the database and introduction of the MS Access. So in this video we will discuss about the tables. Tables, you can say the data which is stored in the RDBMS, can say relational database management system. So all data are in RDBMS is stored in the table. So here I am going to teach you what is table actually and how it is created, and what is the points which we have discussed in the table option, or can say table point in the MS Access. So firstly we will discuss about the view of table. Okay, where we discuss how the table view can be shown in the databases. Basically there are two types of view. First one is data sheet view, and second one is design view. Okay, if we are talking about these two views, so first view is used for watching the table after the creation, and this is the view where you can create the table. This is the view where you can make the table for the databases. So these two views are different type, and I will discuss in the PowerPoint session in PowerPoint session, where I will let you know what is design view and what is data sheet view, and how the table is used for these two views. Okay, second one is create of the table. Create a table. सो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, टेबल को क्रिएट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसी क्रिएट द टेबल में हम लोग बात करेंगे फील्ड्स की, रिकॉर्ड्स की एंड डिस्क्रिप्शंस की. ओके, तो बेसिकली दीज 3 points आर अवेलेबल व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट द टेबल इन MS Access. एक्चुअली मैं आपको एक कोर दिखा देता हूं कि टेबल होती कैसी है जब हम बनाने जाते हैं. तो बेसिकली देयर आर द 3 columns. ओके, लाइक दिस. सो जब आप लोग टेबल का क्रिएशन करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है फील्ड का, देन डेटा टाइप्स, एंड लास्ट वन इज डिस्क्रिप्शन. ओके, फील्ड नेम मतलब आप जो अपने कॉलम्स बनाने जा रहे हो, जो आप कॉलम डिस्कस करोगे, या जो कॉलम्स आपके टेबल में होने चाहिए वो, लाइक रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फोन नंबर, एक्सेट्रा. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा टाइप्स, तो व्हाट द डेटा टाइप इज मीन्स this data, how the data is, what the type of this data. Like roll number, if you have a roll number, so always the roll number is a numeric value, so you will put here number. If we are talking about the name, so always the name will be a text value, so put here text. Father name also a text. Phone number always a number. Okay, description, there is no requirement if you don't want to describe the values or don't want to describe the field name here. If you have some specific point regarding these field names, so you can describe here. Like if we are talking about the roll number, so roll number starting from 1, start from 1, you can describe here. It's your choice, but always remember these two fields can never be empty, can never be null value.
ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो उस टेबल के जब आप क्रिएशन पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का आपको टेबल सामने दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डेटा टाइप्स। व्हाट डेटा टाइप्स? जो डेटा हम फीड करने जा रहे हैं, जो डेटा हम सिस्टम में लगने वाले हैं या जो टेबल में हम पुट करने वाले हैं, उस डेटा का टाइप क्या है। लाइक अगर वो एक नेम है तो डेटा टाइप क्या होगा? टेक्स्ट। अगर वो फोन नंबर है तो डेटा टाइप क्या होगा? न्यूमेरिकल्स या नंबर्स। ओके, अगर वो एक डेटा टाइप डेट ऑफ बर्थ है तो क्या होगा? वो डेट एंड टाइम। यानी अगर वो वैल्यू जो कॉलम नेम है वो डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या डेट ऑफ टाइम पीरियड है तो क्या हो जाएगा? डेट एंड टाइम। अगर हमारे पास उस फील्ड के सिर्फ दो ही ऑप्शन है, सिर्फ यही पता है कि हाँ या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा यस और नो। सो देयर आर सो मेनी डेटा टाइप्स विच वी हैव टू डिस्कस इन द सेशन एंड आई विल डिस्कस इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाट द डेटा टाइप इज। ओके, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे ऐड, डिलीट एंड मूव। ऐड, डिलीट और मूव क्या? फील्ड्स। किसी भी फील्ड, नए फील्ड को जोड़ना, किसी भी गोइंग फील्ड को डिलीट करना और किसी एक फील्ड को दूसरी जगह मूव करना। मान लीजिए आपके पास टेबल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस टेबल में आपके 5 फील्ड हैं। तो इस 5 फील्ड के अलावा अगर मुझे कोई फील्ड ऐड करना है तो कैसे ऐड करूंगा उसके बारे में, किसी फील्ड को डिलीट करना है उसके बारे में, और किसी फील्ड को यहां से मूव करके यहां लेके आना है उसके बारे में। तो दीज आर द ऑप्शंस। और कैसे दिस इज द एडिटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, सॉरी फील्ड्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? फील्ड्स की एडिटिंग भी करेंगे। इन द लास्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेबल। इन द लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मीन्स बेसिकली शॉर्टिंग के 2 ही पर्पस होते हैं, 2 ही टाइप होते हैं। एक होती है असेंडिंग एंड दूसरी होती है डिसेंडिंग। ठीक है, तो जो हमारे पास टेबल बन के आएगी आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल, इफ आई हैड द रिक्वायरमेंट टू पुट ऑल द रिकॉर्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, तो आई विल पुट द असेंडिंग ऑर्डर। If I want all the records in the descending order from the alphabetical order, it means Z to A या A to Z. There are 2 options are available to put your data ascending or descending order. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज बोर्ड पे आपको प्रैक्टिकली दिखा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। That's why I am going to PowerPoint session where I will tell you how to table is create, how the data is saved, or how the data is getting new record, how to table is created, what is the data sheet view, design view. So here we are going to the PowerPoint session where I will tell you what is table creation. Okay, let's go for the PowerPoint session. Here we go, start now with the PowerPoint session of the database table creation. Firstly, in the first video I have told you that in RDBMS, relational database management system, there are so many tables which are connected to the single column. With this we can make the databases. So here I am going to tell you how to create a table, how to save the table, how to edit a table. It means you can add or delete the records from the table. Basically, how can you save, how can you see the table from the database? Okay, so here I am going to tell you, it is your chapter number 3rd to creation of the table or maintain your table. So just watch the video carefully and learn how to create a table on the basic level. Okay,
तो डेटा मेंटेन के लिए सबसे पहले हमें डेटा टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे कि किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट वाला हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स की, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इज़ हेयर। इट मीन्स कि डेटा का टाइप क्या है। अगर आप नेम लिख रहे हो तो इट मीन्स आपका डेटा टाइप न्यूमेरिकल तो नहीं हो सकता। आपके जो वैल्यू है, डेटा की जो वैल्यू है, जो डेटा का टाइप है, वो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल होगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़, तो कहीं ना कहीं डेट एंड टाइम आ जाता है। आप अगर किसी का एड्रेस रख रहे हो तो ये एक तरीके से आपका एक बड़ा सा एड्रेस होता है। मतलब अगर आप एड्रेस लिखते हो, किसी का गांव का पता लिखते हो, शहर का पता लिखते हो, तो ये कहीं ना कहीं मैमो में जाता है। तो लॉन्ग, शॉर्ट, इस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप्स पे, फिर बात करेंगे व्यू ऑफ टेबल्स। हाँ, टेबल्स को आप कितनी तरीके से देख सकते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर जो आपके सामने आ ही जाता है टेबल क्रिएशन के बाद, पर टेबल बनाते समय भी उसको देखा जा सकता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूज़, फर्स्ट वन डिज़ाइन व्यू एंड सेकेंड वन डेटा शीट व्यू। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड वन इज़ क्रिएटिंग अ टेबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि ओवरऑल जो डेटाबेस का कलेक्शन है, डेटाबेस का रिकॉर्ड को सेव करना है, वो इन्हीं टेबल्स में सेव होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स को कैसे सेव किया जाता है, उसमें प्राइमरी की कैसे बनाई जाती है, या प्राइमरी की का यूज़ क्या होता है। आई विल टेल यू आफ्टर डेट एंटरिंग द डेटा। बिल्कुल, आप टेबल बना लो और उसमें डेटा फीड ना करो तो आपके डेटाबेस का काम क्या है। आप बिना डेटाबेस के यूज़ के, बिना डेटाबेस के कलेक्शन के आप उसको फ्यूचर में यूज़ कैसे करोगे। तो एंटरिंग, उसमें डेटा को एंटर कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एडिंग एंड सेविंग, हाँ, डेटा को ऐड करना, नए डेटा को जोड़ना, नए डेटा को उसमें इंसर्ट कराना और फिर उस डेटा को सेव कर देना। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये सब बहुत छोटे छोटे टर्म हैं, तो ये जल्दी फिनिश हो जाएंगे। एडिटिंग ऑफ द रिकॉर्ड, बिल्कुल, एडिट करना मतलब आपका एक रिकॉर्ड है, उसे डिलीट करना चाहते हैं आप, कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो यू कैन डिलीट द कॉलम एंड रो ऑल्सो। शॉर्टिंग ऑफ द डेटा इन अ टेबल, एग्जैक्टली, अगर हम लोग चाहें कि अपना डेटा हमने रैंडम फीड किया हुआ है और हम चाहते हैं उसके बाद वो जो डेटा है वो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाई दे, या फिर हमें सीरियल नंबर में दिखाई दे, या फिर रोल नंबर वाइज दिखाई दे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फैसिलिटी होती है शॉर्टिंग की। बेसिकली कि सभी MS ऑफिस के सभी फंक्शंस में है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, डेटा टाइप्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होता है डेटा टाइप्स। तो एवरी फील्ड इन द टेबल हैज़ द प्रॉपर्टीज एंड दीज प्रॉपर्टीज डिफाइन द फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड इट्स डेटा टाइप। जब हम एक डेटा को फीड करते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि स्मॉल होगा, कैपिटल होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरीके का डेटा है, इसको डिसाइड करना। पता चला कि मैंने न्यूमेरिक डेटा को उसमें इंसर्ट कराया है, लेकिन मैंने उसकी वैल्यूशन यानी डेटा टाइप दे रखा है अल्फ़ाबेटिकल, टेक्स्ट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टेक्स्ट में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेगा, न्यूमेरिकल में टेक्स्ट वैल्यू नहीं लेगा। ठीक, अ फील्ड डेटा टाइप्स डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन बी स्टोर। एग्जैक्टली यही हम लोग बात कर रहे थे कि जो डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं वो किस टाइप का डेटा है, ये हमें डेटा टाइप बताता है। MS Access सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ईच विद द स्पेसिफिक पर्सन। बिल्कुल, जो MS Access है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत टाइप के डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट करता है। उसमें से कुछ है जो मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ। जैसे है, फर्स्ट वन है, सभी को दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। फर्स्ट वन है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट की बात करें हम लोग तो शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होता है, जो हम छोटा सा टेक्स्ट लिखते हैं। छोटा टेक्स्ट का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, स्मॉल टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका नाम, इट्स अ शॉर्ट टेक्स्ट। आपके फादर जी का नाम, इट्स अ शॉर्ट टेक्स्ट। आपकी मदर जी का नाम, इट्स अ शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो शॉर्ट टेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो एंट्रेंस होती है टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्स्ट नंबर्स इंक्लूडिंग विद द नंबर दैट डू नॉट रिक्वायर द कैलकुलेशंस। ठीक है, नंबर्स भी एक्सेप्ट करता है शॉर्ट टेक्स्ट में, लेकिन ऐसे नंबर्स जिसको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी वहाँ पे 2/2 नहीं देगा, वहाँ पे 4/4 नहीं देगा, वहाँ 4+6 नहीं लेगा। ठीक है, तो ऐसे डेटा को एक्सेप्ट करता है। लॉन्ग टेक्स्ट की बात करें, लेंथी डेटा जो होता है उसे एक्सेप्ट करता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड न्यूमेरिक वैल्यूज़। लाइक आपका एड्रेस हो गया 45/46 बसंत विहार दिल्ली, या फिर मोहल्ला रौराखुर्द नियर BSNL टावर, हाउस नंबर 86 मेलक डिस्ट्रिक्ट रामपुर। तो इस तरीके के एड्रेस एक तरीके से लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं, जिसके लिए हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे टेक्स्ट में आ जाएगा दोनों ही, टेक्स्ट ही मतलब होता है दोनों का। नंबर्स, न्यूमेरिक डेटा, ओनली न्यूमेरिक डेटा इज यूज्ड, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है ये न्यूमेरिक डेटा।
नेक्स्ट वन है डेट एंड टाइम। बिल्कुल, डेट एंड टाइम का मतलब तो समझ ही रहे होंगे क्या होता है। डेट एंड टाइम का मतलब है कि भाई आपने किसी का डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपको रिकॉर्ड में ये मेंटेन करना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, या हमें ये मेंटेन करना है कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, या ये मेंटेन करना है कि उसने किस तारीख पे कंपनी को छोड़ा है, या ये मेंटेन करना है कि प्रोडक्ट कितनी तारीख को आए हैं या कितनी तारीख को कंसाइनमेंट हमारा जाना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा डेटाबेस बनाने के लिए हमें डेट एंड टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। करेंसी, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियन करेंसी में डील करें, हम लोग डॉलर में भी, दिनार में भी, युआन में भी, रुबेल में भी, टका में भी, बहुत सारे करेंसीज़ होती हैं। तो करेंसीज़ के लिए करेंसी का एक डेटाबेस अलग से बनाया गया है। ठीक है, वैसे इंडियन करेंसी क्या होती है, रा, दिस वन। ठीक है, तो इसमें वो डिस्कस करता है। ऑटो नंबर एक तरीके से सीरियल नंबर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 1 2 हमने फिक्स किया, जैसे ही हम एंटर करें तो 3 अपने आप आ जाए, फिर हम एंटर करें तो 4 अपने आप आ जाए। इट मीन्स कहीं ना कहीं सीरियल नंबर को एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन पे पुट करने के लिए बिना हमारे फीड किए जो अपने आप आ जाएंगे, दीज आर द ऑटो नंबर्स। यानी आपने लिखा 11 12 तो 13 14 15 16 अपने आप आ जाए, 21 22 23 24 25 26, इस तरीके से सीरियस नंबर अपने आप आ जाए। ठीक है, ये हो गया ऑटो नंबर। अब बात करते हैं येस और नो की। ये आंसर्स होते हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ जिसके 2 ही आंसर्स हों, जो सिर्फ यस और नो में ही आंसर हों, कि अगर आपने टिक किया है तो वो यस हो गया, आपने टिक नहीं किया इट मीन्स नो। लाइक अगर मैं आपके कॉलेज की फ़ीस की बात करूं तो अगर आपने फ़ीस पे की है तो उस जगह पे आपका टिक हो जाएगा, अगर आपने फ़ीस पे नहीं की है तो वो अनटिक्ड रहेगा। तो जहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हों, 2 ही ऑप्शंस हों, वहाँ पे यस और नो का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, डेटाबेस में ऐसे कई बार होगा, जैसे हम लोग डेटाबेस फीड कर रहे हैं तो उसमें आ जाए एक ऑप्शन जैसे कि डिग्री पास्ट। अब डिग्री पास में या तो उसने पास की होगी या नहीं की होगी, अगर पास्ट है तो चेकबॉक्स टिक्ड होगा, अगर चेकबॉक्स टिक नहीं है इट मीन्स उसने डिग्री पास नहीं की है। तो दीज आर द यस और नो ऑप्शन। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और भी डेटा टाइप्स हैं। अटैचमेंट, हर बार ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मली आप टाइप करके ही सारी चीज़ें बता पाएँ किसी को। ठीक है, तो हम लोग उसमें अटैचमेंट फिट करते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है, सच एट द डिजिटल फोटोज़ होते हैं, फोटोज़ एंड वीडियोज़, दीज आर द अटैचमेंट। कहीं ना कहीं हम लोग को अगर डायरेक्ट दिखाना हो कि हाँ साहब इस तरीके का वीडियो या इस तरीके का फ़ोटोज़ आपके रिकॉर्ड में, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का फ़ोटो लगाना है तो वो एक अटैचमेंट होता है। ठीक है, किसी एम्प्लॉय का एक उसने कुछ काम किया हो या उसने कुछ एक ट्रेनिंग दी हो, उसका वीडियो अटैच करना है तो वो हमारा अटैचमेंट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो वीडियो के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन की फाइल्स को भी अटैच करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हम OLE ऑब्जेक्ट में अटैच कराते हैं। ऊपर हम सिर्फ फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ अटैच कराते हैं, नीचे ऑडियो वीडियो और उसके साथ साथ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इनकी फाइल्स को भी अटैच कराया जाता है। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी दे रखी है, 2 GB तक की डेटा हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स, नॉर्मली ये लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ नया ओपन करते रहते हैं। जैसे कि किसी रिकॉर्ड में आपने मेंटेन किया है कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे गेम खेलने गया था, उसका लिंक ये दे रखा है यूट्यूब का, तो उस यूट्यूब पे लिंक ओपन, उस लिंक पे क्लिक करते ही यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा और वो बच्चा कहीं ना कहीं खेलते हुए या विनर प्राइज़ मिलते हुए या राष्ट्रपति से अवार्ड लेते हुए सब कुछ हो जाएगा। तो लिंक हम बना सकते हैं। हाइपर लिंक बेसिकली हम सभी ने बनाए भी हैं एक्सेल और वर्ड में, सॉरी पावर पॉइंट और वर्ड में। लुकअप विजार्ड, ये बेसिकली आपके लिए नहीं होता है, फिर भी द लुकअप विजार्ड एंट्री इन द डेटा टाइप्स कॉलम इन द डिज़ाइन व्यू इज़ नॉट एक्चुअली अ डेटा टाइप। ओके, इट्स नॉट एक्चुअली अ डेटा टाइप। तो हम लोग अगर लुकअप विजार्ड की बात करें तो इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके जो डेटा टाइप यूज़ हुए हैं उसमें आपके कॉम्प्लेक्स और सिंपल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ यूज़ होता है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है या ये आपका सिंपलेस्ट डेटा टाइप है, या सिंपलेस्ट डेटा टाइप या कॉम्प्लेक्स जो फील्ड दिए होते हैं उसे चूज़ करने के लिए या उसे देखने के लिए या उसको रैंडमली व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है लुकअप। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए यूज़ नहीं होता है। कैलकुलेटेड में आप यू कैन क्रिएट एन एक्सप्रेशन दैट यूज द डेटा फ्रॉम वन और मोर फील्ड, यू कैन डेजिग्नेट डिफरेंट रिजल्ट डेटा टाइप फ्रॉम द एक्सप्रेशंस। कैलकुलेटेड का मतलब यह है कि मैंने बीच में एक एक्सप्रेशन का यूज़ कर दिया, वो एक्सप्रेशन आपका कंपैरिजन का भी हो सकता है, एडिशन का भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेटिव एरिया का जो एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
वो अब बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं कि इसका कंपैरिजन, एक कॉलम का कंपैरिजन दूसरे कॉलम से है या एक रिकॉर्ड का कंपैरिजन दूसरे रिकॉर्ड से है, तो हु इज़ बेटर या किसका रिकॉर्ड मेंटेन ज़्यादा रहा है। ठीक है, बस इसीलिए यूज़ किया जाता है। चलिए डेटा टाइप्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं व्यू ऑफ टेबल। किसी भी टेबल का व्यू हम कैसे करते हैं, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। अगर आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो व्यू पे क्लिक किया है तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ डेटा शीट व्यू, दिस वन, एंड सेकेंड वन इज़ डिज़ाइन व्यू। ये व्यू ऑप्शन के अलावा भी, ये व्यू ऑप्शन के अलावा भी यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है व्यू ऑप्शन, इसके अलावा आपको नीचे भी कॉर्नर पे भी दिखाई देगा। अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे जो ये कॉर्नर पे दिखाई, मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ। ठीक है, बैक आओ। तो यहाँ पे जो नीचे ये दिखाई दे रहा है ना, ये ओके। तो हम लोग बात कर चुके थे डिज़ाइन व्यू के बारे में, तो अब हम बात करेंगे डेटा शीट व्यू के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं टेबल क्रिएशन के बाद हमें दिखाई देता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। आफ्टर डेट हम लोग अब बात करेंगे कहीं ना कहीं डेटा शीट व्यू, जब हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है तब हमें जब देखना होता है। तो अब व्यू डेट डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेबल फ्रॉम क्वेरी व्यू और स्टोर्ड प्रोसीजर इन द रो एंड कॉलम फॉर्मेट। इन डेटा शीट व्यू यू कैन एडिट फील्ड, ऐड एंड डिलीट डेटा इन सर्च ऑफ डेटा। ओके, हम लोग डेटा को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डेटा शीट व्यू में, बट डिज़ाइन व्यू में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है। इट इज़ यूज टू एंटर द डेटा इन टेबल। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम इट ओपन्स द टेबल इन डेटा शीट व्यू। मैंने आपको बताया था कि जब हम डिज़ाइन व्यू में डेटा को फीड करने के लिए अपने टेबल नेम क्रिएट कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो हमारा नेविगेशन पेन होता है ना, उसमें हमें डायरेक्ट अपने टेबल का नेम शो होता है। जब भी हमें अपने टेबल को डेटा शीट व्यू में देखना है तो उस टेबल नेम पे सिर्फ हमें डबल क्लिक करना है, हमारा जो पूरा का पूरा टेबल है वो डेटा शीट व्यू में आ जाएगा, ताकि हम अपने रिकॉर्ड को फीड कर सकें, ताकि हम अपने रिकॉर्ड को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे डेटा शीट व्यू में शो होगा आगे टेबल क्रिएशन में। ठीक है, अब नीचे मैंने डबल स्टार में एक एस्ट्रिक में कुछ लिखा हुआ है, यू कैन स्विच द व्यू MS एक्सिस बाय क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन। जो व्यू ऑप्शन मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया था, दैट इज़ योर व्यू ऑप्शन। ठीक है, ये आपका व्यू ऑप्शन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, दिस इज़ योर व्यू ऑप्शन। अदरवाइज आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं ना, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज जो देखो एक एरो दे रखा है यहाँ नीचे लास्ट में ही है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। दोनों व्यूज़ आप ही के लिए हैं, तो इन दोनों व्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन व्यू या डेटा शीट व्यू में चला जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट अ टेबल। जब हमें टेबल क्रिएट करना होता है तो सबसे पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है, डिज़ाइन व्यू में जाके। अदरवाइज देयर इज द सेकंड ऑप्शन, गो टू द क्रिएट मेन्यू ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द टेबल डिज़ाइन। सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस इज़ योर टेबल डिज़ाइन। ठीक है, और ये आपका एक टेबल ग्रुप के अंदर में है, जो कि क्रिएट ऑप्शन आपको दिया है। जैसे होम के एक राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है ना क्रिएट, दिस वन ये क्रिएट। ठीक है, इसके नीचे आपका टेबल डिज़ाइन है। ठीक, और ये आपका टेबल ग्रुप है। तो टेबल ग्रुप के अंदर टेबल डिज़ाइन में जाएंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेबल डिज़ाइनिंग का एक पूरा फॉर्मेट आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा, मैं दिखा देता हूँ स्ट्रेच करके, दिस वन। तो बेसिकली देयर आर थ्री ऑप्शन। फर्स्ट वन जिसकी हमने बात की थी डिज़ाइन व्यू में, फर्स्ट वन इज़ फील्ड नेम, सेकंड वन इज़ डेटा टाइप एंड थर्ड वन इज़ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अगर आप उसे फीड करते हैं या नहीं करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ आपके दो कॉलम्स हैं, फील्ड नेम एंड डेटा टाइप, ये दोनों आपके ब्लैंक नहीं होने चाहिए। अगर आपने उस पर क्लिक किया है तो कुछ ना कुछ आपको फीड करना पड़ेगा। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा टेबल का नेम, जो मैंने चूज़ किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके स्टूडेंट्स जो मैंने टेबल बनानी है उसमें कौन कौन से फील्ड रखने हैं, या आपके नॉर्मल टर्म में कहूँ कि कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, तो यहाँ पे वो सारे के सारे फील्ड बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो बनाए हैं, दिस वन। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की है, उस टेबल में मैंने सबसे पहले लिया है क्या, रोल नंबर। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया है, नेम, फिर मैंने लिया है फादर नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, फीस एंड फीस पेड। देयर आर 5 और 6 ऑप्शंस। ठीक है, अब इन 6 ऑप्शंस के सामने जो भी आपको डेटा टाइप दिखाई दे रहा है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसके बिहेवियर के हिसाब से हैं।
जैसे रोल नंबर की अगर हम बात करें तो रोल नंबर हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स मैंने आपको उसी के सामने उसके डेटा टाइप्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही उसके डेटा टाइप्स हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। जैसे हम लोग बात करें रोल नंबर की, तो रोल नंबर में आपके नंबर्स होते हैं, नेम में आपका टेक्स्ट होता है, फादर नेम में आपका टेक्स्ट होता है। क्लास की बात करें तो क्लास में आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं। सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन हमेशा टेक्स्ट में ही होते हैं। डेट ऑफ बर्थ डेट और टाइम में ही होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कोई आपको डिस्क्राइब करेगा कि मैं काली रात में पैदा हुआ था, मैं गोरी रात में पैदा हुआ था, सूरज चाचू निकल रहे थे, चंदा मामा निकल रहे थे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ हम लोग डेट या टाइम से काउंट करते हैं। मंथ फीस उसकी करेंसी ही होगी, जाहिर सी बात है। मंथ फीस को हम लोग एकड़ में, दिनार में, सोने में तो नहीं लेते, उसमें करेंसी में ही लेते हैं। फीस पेड, इसमें येस और नो, मतलब अगर उसकी फ़ीस पेड है देन येस, नहीं पेड है देन नो, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने ये टेबल क्रिएट किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेबल क्रिएशन के बाद क्या होता है। टेबल क्रिएशन के बाद हम लोग एक प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं। वाई प्राइमरी की? जस्ट बिकॉज कि उस टेबल को हमें बहुत सारी और टेबल से भी कनेक्ट करना है और विदाउट प्राइमरी की इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्राइमरी की बात करने के बाद यहाँ पे हम लोग का टेबल क्रिएट हो चुका है, टेबल हम लोग के सामने है, अवेलेबल है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा शीट व्यू, ठीक है। डेटा शीट व्यू का मतलब अब कहीं ना कहीं आपके टेबल के रोज़ और कॉलम्स आपके सामने अवेलेबल हैं। आप लोग सिर्फ यहाँ पे रेडी हैं रिकॉर्ड को फीड करने के लिए। तो ये जो आपका पूरा का पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका डेटा शीट व्यू कहलाता है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को एंटर कराएंगे, ठीक। अब रिकॉर्ड एंटर कैसे कराएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। दिस इज़ योर एंटर द डेटा इन द टेबल। अब देखो मैंने यहाँ पे ना 3 रिकॉर्ड्स फीड कराए हैं, 3 रिकॉर्ड्स मैंने फीड कराए हैं, जिसमें पहला है अनिल कुमार सिंह, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ अनिल कुमार सिंह, सेकंड वन इज़ पल्लवी प्रिया सिंह एंड थर्ड वन इज़ दीपांशु सिंह। तो कहीं ना कहीं ये 3 रिकॉर्ड्स मैंने फीड कराए हैं और इसमें मैंने सारे के सारे ऑप्शन फिल किए, एक भी मैंने ब्लैंक नहीं छोड़ा। जैसे रोल नंबर 1, 2, 3 अनिल कुमार सिंह, पल्लवी प्रिया सिंह, दीपांशु सिंह, ओम पी सिंह, जितेंद्र सिंह एंड ओ पी सिंह, MCA बायोटेक MBA, सेक्शन इज़ AAB, डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1991, 13 अप्रैल 1999 एंड 18 अगस्त 1993। मंथली फ़ीस है 4000, 3500 एंड 3000 एंड फीस पेड में अनिल कुमार सिंह की फ़ीस पे है, पल्लवी प्रिया सिंह की फ़ीस पे नहीं है और दीपांशु सिंह की फ़ीस पेड है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है मैंने पूरा। तो ऐसे ही आप लोग भी रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड फीड कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड फीड कैसे किया जाएगा? हर बार एक रिकॉर्ड लिखेंगे, फिर न्यू पे जाएंगे, फिर रिकॉर्ड लिखेंगे, फिर न्यू पे कराएंगे। कैसे जाएंगे न्यू पे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वापस इस पे लेके आता हूँ। जैसे किसी भी नए रिकॉर्ड को ऐड करना है तो आपके पास ऑप्शन है होम, होम के बाद आप लोग किस पे जाएंगे, रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से आप जाएंगे न्यू पे। तो नए रिकॉर्ड को फीड करने का ये ऑप्शन है। सेव करने के लिए होम, होम के अंदर रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के अंदर सेव का ऑप्शन होगा, तो आपका रिकॉर्ड सेव होता रहेगा। अब मैं आपको शो भी कर देता हूँ कैसे। जैसे ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड के बाद मुझे नए रिकॉर्ड फीड करने हैं। तो नए रिकॉर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नए रिकॉर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन न्यू, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक करूँगा तो इससे मेरे नए रिकॉर्ड्स आते जाएंगे। सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो रिकॉर्ड्स मैं लिख रहा हूँ वो सेव होते जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करने हैं ताकि मैं अपने रिकॉर्ड को मेंटेन भी कर सकूँ, नए रिकॉर्ड को फीड कर सकूँ और सेव भी कर सकूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम स्लाइड, ओके। एडिटिंग द रिकॉर्ड। एडिटिंग में बेसिकली 3 फीचर्स हैं, एडिंग, डिलीटिंग एंड मूविंग। ऐड और डिलीट करने के लिए माउस की राइट क्लिक का हेल्प लेते हैं और मूव करने के लिए माउस की लेफ्ट क्लिक का। कैसे, अब हम पढ़ लेते हैं। एडिंग में लिखा है ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू। बेसिकली हम लोगों ने सारे टेबल्स ओपन कर रखे थे लास्ट में। राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम, जिस भी फील्ड नेम के साथ हमें वो कॉलम चाहिए, वो फील्ड चाहिए, तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे वेयर यू वांट टू इंसर्ट द फील्ड एंड सेलेक्ट द इंसर्ट फील्ड ऑप्शन। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर आएगी, उसमें एक इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन आएगा। क्लिक ऑन इंसर्ट फील्ड और आपका नया फील्ड ऐड हो जाएगा, ठीक, नॉर्मल है। डिलीट करने के लिए भी सेम ही ऑप्शन है। जिस फील्ड को आपको डिलीट करना है फर्स्टली क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक करिए उस पर। राइट क्लिक करने के बाद आपके इंसर्ट फील्ड के जस्ट नीचे लिखा आएगा डिलीट फील्ड। उस डिलीट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो पूरा का पूरा कॉलम है, पूरा का पूरा फील्ड है, वो डिलीट हो जाएगा। मूविंग फील्ड,
अब एक फील्ड को दूसरी जगह लेके जाना है तो आप उस फील्ड पे फर्स्टली क्लिक करिए और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करे रहिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए जहाँ पे भी आपको उस फील्ड को पुट करना है। जैसे आपको रोल नंबर सबसे पहले दिया हुआ है, उसको मिड में पुट करना है तो रोल नंबर को क्लिक करिए और माउस की लेफ़्ट क्लिक से खिसका के बिल्कुल मिड में ले आइए, तो वो आपका कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। बेसिकली आप लोगों ने MS वर्ड, पावर पॉइंट इन सब में ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ किया है, याद है? तो वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे भी करना है, कोई चेंज नहीं है, सेम है। Sorting of data. Basically, sorting is called the arrange the data in the specific manner in ascending order or in descending order. ठीक है, दो टाइप के आपके ऑर्डर्स होते हैं। Ascending order means if you want to put the data from A to Z, you will put this data in ascending order. If you want the descending order, put the data into Z to A in the against order. So basically मैं आपको दिखाऊं तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जो आप लोगों ने फील्ड तैयार किया हुआ है, जो आप लोगों ने टेबल तैयार किया हुआ है, अगर आप गौर करेंगे उसके जस्ट साइड में एक छोटे छोटे से एरो बने हुए आते हैं, ये दिस वन, फादर नेम, क्लास, सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने नेम वाले सेक्शन पे मैंने एरो पे क्लिक किया है, तो एरो पे क्लिक करते ही मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए, शॉर्ट डेटा A to Z एंड शॉर्ट डेटा Z to A। फर्स्ट वन इज़ असेंडिंग ऑर्डर, सेकेंड वन इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? जैसे मुझे अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डेटा कैसे लिखा हुआ आएगा? सबसे पहले लिखा आएगा अनिल कुमार सिंह, पहले लिखाएंगे अनिल कुमार सिंह, फिर आएंगे दीपांशु सिंह और लास्ट में आ जाएंगी पल्लवी सिंह। अगर इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा देन क्या होगा? सबसे पहले पल्लवी सिंह आ जाएंगी, फिर दीपांशु सिंह आ जाएंगे, फिर अनिल कुमार सिंह आ जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आपको जो भी ऑर्डर चाहिए आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सारे सबको सेलेक्ट कर लिया है, अदरवाइज़ आप चाहें तो सिर्फ दो डेटा में भी किसी भी दो डेटा को सेलेक्ट करके आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पुट कर सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। ओके, तो दिस इज़ इट फ्रॉम द टुडे क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, शो पेशेंसली, कीप योरसेल्फ सेफ। और जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसको रिवाइज़ करते रहिए। आप लोग के पास लैपटॉप्स हैं तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है? सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।